Good morning, dear students. So far, we have started with the topic of process of digestion, in which we have discussed that what are the substances that are going to be digested in the oral cavity or buccal cavity. तो oral cavity में digest होते हैं carbohydrates. About 30% जितने carbohydrates हमारे oral cavity में digest हो जाते हैं. And these are digested by the enzyme salivary amylase, which converts it into maltose. The next was the digestion in stomach. Stomach में inactive enzymes release होते हैं जिन्हें कहा जाता है pepsinogen and prorenin. And pepsinogen is converted to the active pepsin in presence of hydrochloric acid, which is also released by specialized cells called oxyntic cells of the gastric glands. मतलब स्टमक में प्रेजेंट होने वाले ग्लैंड्स को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं वो ये अलग अलग तरह के एंजाइम्स HCl और म्यूकस को रिलीज करते हैं. The mucus will be lubricating the wall of the stomach from the harmful effects of the HCl. Lipases भी रिलीज होते हैं स्टमक में, but the amount of lipases released are very less and so their effect is also very less. Next was the intestinal, that is the intestinal enzymes. But in intestine, there are three types of secretions that are mixing. Bile juice coming from liver, pancreatic juice coming from pancreas. Both of them come from hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct जो होता है that is going to open into the duodenum. और hepatopancreatic duct क्या carry करता है? Bile also as well as pancreatic juice. And the third is the intestinal juice, which is released by the intestinal cells itself. जो intestinal cells हैं वो खुद ही रिलीज करेंगे intestinal juice. तो ऐसा करके तीन तरह के secretions intestine में combine होते हैं. हमने previous lecture में bile की action के बारे में पढ़ा था that bile will be emulsifying the fats. जो fats होते हैं उन्हें छोटे droplets में convert करता है जिसे कहा जाता है micelles. राइट तो ये बाइल का फंक्शन रहेगा. पैंक्रियाटिक जूस की हमने बात की थी दैट पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट एंजाइम्स. वी हैड मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन पैंक्रियाटिक जूस व्हिच वेर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज. ऑल थ्री वेर इनएक्टिव एंजाइम्स. द फोर्थ वन दैट वाज द लाइपेजेस, pancreatic amylases and nucleases were the 6 enzymes present in the pancreatic juice. So first we talk about action of all such pancreatic enzymes. Okay, so we will mention action of pancreatic enzymes. तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में सबसे पहला आ जाता है ट्रिप्सिनोजन. सो ट्रिप्सिनोजन इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस एंड ट्रिप्सिनोजन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन. यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक इनएक्टिव एंजाइम है, या तो आप कह सकते हैं इट इज अ प्रो एंजाइम. What is trypsinogen? A proenzyme, and it gets converted into trypsin, which is the active enzyme. Now, who is this activator? जैसे pepsinogen to pepsin, the activator was what? The activator was the substance called HCl. वैसे ही यहाँ पे trypsinogen to trypsin करने में जो activator substance present होता है, that activator is known as enterokinase. It is called enterokinase. तो enterokinase जो है वो एक एक्टिवेटर है, और ये enterokinase के बारे में लिख देते हैं that enterokinase is an activator enzyme. Activator enzyme released in इंटेस्टिनल जूस. मतलब ये जो एंटेरोकाइनेज है ये प्रेजेंट किस में होता है? इंटेस्टिनल जूस का कंपोनेंट है. तो इंटेस्टिनल जूस में एंटेरोकाइनेज है, पर वो एक्टिवेट किसे कर रहा है?
पैंक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब पैंक्रियाज के एंजाइम्स जब हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से ट्रैवल करके डिओडिनम में पहुंचेंगे, डिओडिनम में दे विल फेस द इंटेस्टिनल एंजाइम्स आल्सो। तो जब ये इंटेस्टिनल एंजाइम्स के टच में आते हैं तो इंटेस्टिनल एंजाइम्स में एक कंपोनेंट है जिसे कहा जाता है एंटेरोकाइनेज, और एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिनोजन जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ है, this activated trypsin will now activate two other enzymes, that is chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. So we will mention that point. The activated trypsin will further activate procarboxypeptidase and chymotrypsinogen. ओके, तो सबसे पहला आता है trypsinogen, that is going to be converted into trypsin. It is going to be converted by enterokinase, which is a part of intestinal juice. Okay, it is a part of इंटेस्टिनल सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है पर एक्टिवेट पैंक्रियाटिक एंजाइम को करता है। ठीक है, अनदर थिंग इज, एक बार ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया, अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, नाउ दिस ट्रिप्सिन विल एक्टिवेट टू मोर एंजाइम्स व्हिच आर द प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड द chymotrypsinogen. Procarboxypeptidase is converted to carboxypeptidase and chymotrypsinogen is converted to chymotrypsin. तो ऐसे दो तरह के conversions हो जाएंगे. So now what do this three do? ट्रिप्सिन है, chymotrypsin है और carboxypeptidase है. ये तीनों का फंक्शन क्या है? तो ये तीनों एंजाइम्स प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू डाइपेप्टाइड्स. सो वी विल मेंशन दैट द प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स. प्रोटियोज और पेप्टोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के ही छोटे पोर्शंस होते हैं. जैसे कि प्रोटीन हैज मेनी एमिनो एसिड्स बट प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स हैज लेस नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स. तो उनके जो चेन्स होते हैं वो थोड़े शॉर्टर होते हैं एज कंपेयर टू अ प्रोटीन चेन. ठीक है, सो प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स all together will be converted in presence of trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase, and they are all converted into what? Converted into dipeptides. What are they converted into? Dipeptides. Dipeptides मतलब a group of two amino acids together. जब पूरी चेन में सिर्फ दो ही एमिनो एसिड्स हो, two amino acids are attached to each other, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड्स. प्रोटीन्स मतलब many amino acids. प्रोटियोजेस मतलब few amino acids. And when only two amino acids are grouped together, it is called dipeptides. तो in short, trypsin, chymotrypsin और procarboxypeptidase तीनों ही कैसे एंजाइम्स हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, राइट? तीनों ही प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स को ब्रेक करते हैं और कन्वर्ट किस में करते हैं? डाइपेप्टाइड्स. सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस. अगर पैंक्रियाटिक जूस काम कर रहा है तो व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट? डाइपेप्टाइड्स. नाउ पैंक्रियाटिक जूस along with these three enzymes, it had presence of other enzymes also. The first enzyme that is the fourth enzyme was pancreatic amylase. So carbohydrates, we will mention that complex carbohydrates are digested by pancreatic amylase into disaccharides. राइट? तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब
पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पॉलीसैकेराइड्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, डाइसैकेराइड्स, एंड व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर इट, पैंक्रियाटिक amylase. So we will mention that starch like polysaccharide. Starch क्या होता है, polysaccharide, which is a long chain of monosaccharides, right? Monosaccharide is a simple sugar, disaccharides are two sugars together, and polysaccharide means a whole chain of sugars. Okay, so starch is converted into maltose. Starch is converted into maltose like sugar, and that is going to happen in presence of pancreatic amylase. As you can see, this action is very similar to salivary amylase. Salivary amylase की action भी ऐसी ही थी. तो ये हो गया पहला, डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन्स को. ये किसे डाइजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहा है, राइट. तो हमारी डाइट में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, थर्ड क्या प्रेजेंट होता है, फैट्स. तो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए द फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स in presence of the enzyme present is lipases. Now the lipases will able to work. What is the reason for the lipases to work? That already the fats are emulsified into micelles by the bile juice. Bile juice already उसने emulsify कर ही दिया है. So now the lipases can function on it, and therefore the fats, which are the complex substances, are going to be converted into diglycerides, and the diglycerides are converted into monoglycerides. Okay, so this is going to happen in presence of lipases. Fats are converted. Diglycerides जो होते हैं, they are smaller molecules as compared to the large size fats. Fats जो होते हैं उनमें long hydrocarbon chains present होते हैं. They will be converted into diglycerides and monoglycerides. The fourth component that is present in our diet is nucleic acids. So nucleic acids will be broken down by nucleases. Nucleic acids are broken down by the enzyme nucleases. What is it called? Nucleases. So how the conversion is going to occur? I am writing it over here. Nucleic acid is going to be, you will be writing like this only, okay. I am mentioning the arrow downwards because I don't have enough space. You will be mentioning the arrow on the side only. So nucleic acid in presence of nucleases, what it will be converted into? It will be converted into nucleotides and further nucleosides. Okay, so nucleic acids in presence of nucleases enzyme will be converted to nucleotide. Nucleotide जो होता है उसमें तीन components होते हैं, base, sugar और phosphates. That you will understand, right? और उसके बाद ये convert होते हैं into nucleosides, जिसमें सिर्फ base और sugar present होता है और phosphate भी remove हो जाते हैं. So here, pancreatic juice is able to digest proteins, it is able to digest carbohydrates, it is able to digest fats, and it is able to digest nucleic acids. चारों ही component यहाँ पे digest हो सकते हैं, right? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इंटेस्टिनल एंजाइम्स. ये तो पैंक्रियाज ने इतनी एंड प्रोडक्ट्स, तो पैंक्रेटिक जूस के एंड प्रोडक्ट्स याद करनी हो तो क्या याद रखना है? फर्स्ट एंड प्रोडक्ट इज डाइपेप्टाइड, राइट. सेकेंड एंड प्रोडक्ट्स विल बी माल्टोजेस, और माल्टोज जैसे सारे ही डाइसैकेराइड्स, ठीक है, सारे ही डाइसैकेराइड्स आएंगे एज एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो डाइसैकेराइड्स आए. थर्ड एंड प्रोडक्ट क्या होगी? डाइग्लिसराइड्स and monoglycerides, and the fourth end product will be nucleotides and nucleosides.
तो अब चारों एंड प्रोडक्ट को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा? इंटेस्टिनल एंजाइम्स। मतलब यहां तक पैंक्रियाटिक जूस ने काम कर लिया है, अब इस काम के आगे इनको फर्दर सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, राइट, सिंगल मोनोमेरिक यूनिट में ब्रेक करना, वो काम किसका है? इंटेस्टिनल एंजाइम्स का फंक्शन है। तो अब हम लास्टली देखते हैं दैट हाउ इंटेस्टिनल एंजाइम्स विल फंक्शन। रिमेंबर द secretion of intestinal gland is called, एक तो इंटेस्टिनल जूस तो कहते ही हैं, but another term which you have to remember is succus entericus. What it is called? Succus entericus. The secretion of the intestinal glands जो रिलीज करते हैं वो secretion को क्या कहा जाता है? Succus entericus कहा जाता है, राइट। तो हम अब बात करते हैं अबाउट द secretion of the intestine। मतलब इन Succus entericus के एंजाइम्स कौन से हैं और वो क्या डाइजेस्ट करते हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। So as stomach has gastric glands, intestine will be having intestinal glands, and these intestinal glands are located in the layer of intestinal mucosa, right? हमने जब पढ़ा था that there are 4 different layers, serosa, muscularis, submucosa and mucosa। तो जो mucosa layer होता है उसमें intestinal glands present होते हैं और यही इंटेस्टिनल ग्लैंड्स इंटेस्टिनल जूस को रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है सक्सस एंटेरिकस। सो वी विल मेंशन ओवर हियर एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल एंजाइम्स। ओके, सो हाउ डू इंटेस्टिनल एंजाइम्स फंक्शन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस जिसे कहा जाता है सक्सस एंटेरिकस। और इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो होते हैं दे ऑल्सो दैट इज द इंटेस्टिनल, मतलब पूरा ही पीएच जो होता है वो इंटेस्टाइन का अल्कलाइन रहता है। तो ये अल्कलाइन मीडियम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज द बाइल जूस, बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैंक्रियाटिक जूस as well as the components released from the intestinal glands जिसे कहा जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये तीनों ही मेंटेन करते हैं अल्कलाइन मीडियम। सो हियर अल्कलाइन मीडियम is maintained by the submucosal glands। और ये सबम्यूकोजल मतलब जो ग्लैंड्स सबम्यूकोजा लेयर में है, और सबम्यूकोजा लेयर में कौन से ग्लैंड्स होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। सो ब्रूनर्स ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन अल्कलाइन पीएच। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस के बाइकार्बोनेट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और बाइल जूस भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग एन अल्कलाइन मीडियम, सो दैट स्टमक में से जो फूड आया है उसकी एसिडिटी को रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, अब इंटेस्टिनल एंजाइम्स में सबसे पहले हम बात करेंगे द एंजाइम्स डाइपेप्टाइडेजेस। सो एंजाइम्स कॉल्ड डाइपेप्टाइडेजेस will be digesting or breaking down the dipeptides। आपको याद हो तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करते हैं? प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू डाइपेप्टाइड्स। अब ये डाइपेप्टाइड्स जो है दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एक्सक्रीशन, राइट, उनकी एंड प्रोडक्ट है वो एंजाइम्स की। तो डाइपेप्टाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेजेस विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टिल स्मॉलर फॉर्म कॉल्ड एमिनो एसिड्स। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। ओके, सेम वे देयर आर, दैट इज फॉर प्रोटीन, ठीक है, द intestinal juice also contains disaccharidases। मतलब जो एंजाइम्स डाइसैकेराइड को ब्रेक करें,
तो डाइसैकेराइड में क्या आएगा? माल्टेज, लैक्टेज एंड sucrases. Maltase will break maltose, lactase will break lactose sugar, sucrase will break sucrose. So here we mention for carbohydrates. ये किसके लिए था? प्रोटीन्स के लिए. अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मेंशन करना हो तो we will have to mention the maltose is broken down in presence of maltase, and what it is converted into? Two molecules of glucose. It is converted into two molecules of glucose. Okay. Same way we have lactose. Lactose is converted in presence of the enzyme lactase, and it will convert it into glucose plus galactose. Okay. The third enzyme is the third product, sucrose. It will be converted by sucrase into glucose plus fructose. So what I am trying to say is that there will be different type of disaccharidases. Disaccharidases मतलब ऐसे एंजाइम्स जो डाइसैकेराइड को ब्रेक करते हो. तो डाइसैकेराइड को ब्रेक करना मतलब माल्टोज को ब्रेक करना, लैक्टोज को ब्रेक करना, राइट. सुक्रोज, जैसे कि हमारे पास कई हम प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें लैक्टोज होता है, कई शुगर प्रोडक्ट्स हम खाते हैं उसमें सुक्रोज होता है, राइट. जैसे कि हम केन शुगर खाते हैं तो इट इज रिच सोर्स ऑफ सुक्रोज. जैगरी खाते हैं तो इट इज रिच सोर्स ऑफ सुक्रोज. तो ये सारे प्रोडक्ट्स को भी कन्वर्ट तो करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में. सो दैट इज ऑल डन बाय द डाइसैकेराइडेज टाइप ऑफ एंजाइम्स. तो प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए, तो प्रोटीन्स में एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एमिनो एसिड्स. कार्बोहाइड्रेट्स में एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज. ये तीन एंड प्रोडक्ट मिलेंगे. अब हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं. तो nucleotides will be converted in presence of nucleotidases, and they will be converted into what? Nucleosides. Okay, and the nucleosides will be converted in presence of nucleosidases into base plus sugar. तो न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस ऐसे दो एंजाइम्स होंगे. न्यूक्लियोटाइडेजेस विल कन्वर्ट न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस विल कन्वर्ट न्यूक्लियोसाइड्स इनटू बेस एंड शुगर. मतलब उसके सारे ही कंपोनेंट्स को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं, राइट. तो ये हो गया प्रोटीन के लिए, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड्स के लिए. अब क्या है हमारे पास? लिपिड्स हैं, राइट, फैट्स है. तो फैट्स ऑलरेडी किसमें कन्वर्ट हो चुके थे? मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स. मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स will be converted by intestinal lipases. And what are they converted into? They are converted into the simple form fatty acids plus glycerol. So here the end product will be base and sugar. Here the end product will be fatty acid and glycerol. So what has the intestinal enzymes done? They have formed the easiest absorbable substances which can be now simply absorbed by intestinal cells. So these end products are easily absorbed. फर्स्ट मैं लिख देती हूं. They are easily digested in duodenum, and absorbed in jejunum
and ileum, right? तो पूरा ही डाइजेशन कहाँ पे हुआ? पूरा ही डाइजेशन हुआ डिओडेनम में, और सारी ही चीजें अब्सॉर्ब कहाँ होने लगेंगी? एब्सॉर्प्शन विल बिगिन इन जेजुनम एंड इलियम। तो जो चीजें अब्सॉर्ब नहीं हुई उनके बारे में क्या? Undigested, unabsorbed substances will now enter into your large intestine. So the unabsorbed and undigested waste or substances will enter the large इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली कुछ डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब होता नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में सम एब्जॉर्ब्स सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड सम ड्रग्स, राइट? हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मेनली कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बहुत वाटर, थोड़ा अबाउट मिनरल्स लाइक सॉल्ट्स और थोड़े ड्रग्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता। और एक चीज है दैट इट रिलीजेस म्यूकस। हु रिलीजेस? लार्ज इंटेस्टाइन रिलीजेस म्यूकस फॉर adhering the waste and lubricates easy passage of waste। मतलब क्या हो रहा है कि सारे ही जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जैसे जैसे पानी सब एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो अलग हो जाते हैं। तो उन सबको वापस साथ में रखने के लिए म्यूकस होता है, एंड ऑल्सो इट lubricates so that easily the waste substances can pass into the whole large intestine। This digestive waste will be known as feces। डाइजेस्टिव वेस्ट को क्या कहा जाता है? feces। So next lecture में हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। So if you are liking this video, please share this video, subscribe, like this videos. It is very very important for us, as well as more and more students will come to know if you are also subscribing, you are also liking these videos.